स्नैपशॉट द प्रोडक्शन प्लानिंग, इसका मेनली 3 हिस्सा होता है. एक्चुअली आप लोग सभी लोग विदाउट एक्सेप्शन एवरी वन ऑफ यू डू दिस 3 थिंग्स. वो 3 क्या है? पहला पॉइंट जो है वो है कैपेसिटी प्लानिंग. कैपेसिटी प्लानिंग इज सिंपली, it is based on the tentative schedule of the customer and based on the manufacturing capacity that you have, particularly the bottleneck machine. Particularly the bottleneck machine for all the products that the customer is asking you to deliver. Maybe the customer is giving you a 3 months tentative schedule. In some cases, 1 month schedule. मैंने देखा है कि सारी कंपनी का अलग अलग है कस्टमर के साथ जो रिक्वायरमेंट है, and depends on also their type of product that they take it from you. So but जो भी हो, अगर टेंटेटिव शेड्यूल कस्टमर देते हैं आपको, पहला जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखना कि जो शेड्यूल कस्टमर बोल रहे हैं कि 3 महीने में करो करके, वो करने के लिए हर एक प्रोसेस का जो बॉटलनेक मशीन है, बॉटलनेक रिसोर्स है, तो वो उसका कैपेसिटी क्या मीट कर रहे हैं ये शेड्यूल के साथ. एंड दैट टाइम मेरा ये सुझाव है आप सबको कि डू नॉट अननेसेसरीली squeeze in your commitment. That creates a lot of headache to the entire, I'll say muri to the entire production process. That is not the way to run your manufacturing system. You are actually putting man, machine, everything, methods, everything to a strain. And that stress actually causes huge impact to you also and to your resources also. Don't do that. In fact, I will say that if you remember our OEE discussion, OEE के हिसाब से consider the losses in a pragmatic way, not pragmatic way, in a realistic way, rather, I would say. And then based on that, you decide that whether you are able to take that production or not. If not, tell clearly that how much you can do and that you can commit. Customer will respect that. Then macro planning. Macro planning, you decide based after the capacity planning has been done, what to accept, what not to accept. Then you decide which product, how much quantity, in which week. That means in macro planning also, the question of dates are not coming. I'm talking about the realistic situation. तब भी डेट नहीं आता है, सिर्फ एक पैकेज आता है कि ये वीक में इतना प्रोडक्ट, इतना क्वांटिटी आपको देना है. सो दैट यू कैन अगेन डिसाइड बेस्ड ऑन व्हाटएवर कैपेसिटी प्लानिंग यू हैव डन वेदर यू कैन रियली अकोमोडेट दैट. लेकिन इस बार जब आप करोगे, देन ऑल्सो यू कंसिडर योर करंट स्टॉक पोजिशन. इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा. करंट स्टॉक पोजिशन को नजर में रखते हुए कि आपका आरएम का स्टॉक कितना है, डब्ल्यूआईपी का क्या स्टॉक है, कौन से पार्ट नंबर का, एफजी का क्या स्टॉक है. Based on that, you can decide this. Now comes the most important thing, जहां पर लीन आपको मदद करेगा, that is micro production planning. क्योंकि इधर रोलिंग प्लान आता है. And I'm again telling you that it is not weekly plan. Weekly plan, normally I've seen many companies that you do not do the rolling plan, but you should be doing the rolling plan. That means if you decide that your throughput time for a particular dispatch quantity and dispatch date is 3 days, then you should be rolling always 3 days in advance. Okay. And same thing between you and your subcontractor also. So if subcontractor के साथ आपका 7 दिन का चलता है, इधर 3 दिन का चलता है, actually that means that you should be really giving a thought of 10 days advance planning, because needed, because you will be asking your subcontractor to go for a manufacturing based on जो आपका customer का demand होगा. So micro planning में हम लोग क्या करते हैं, कौन सी मशीन कौन सी डेट में कितने बजे से कितने बजे, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है साइकिल टाइम का, एएसक्यू लॉसेस का, एटसेट्रा. तो इसको अगर मैं सम अप करूंगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को, इसमें इन्वेंट्री प्लानिंग सिस्टम है, जो स्टॉक प्लानिंग है, पर्टिकुलरली कीपिंग इन व्यू द इन्वेंट्री प्लानिंग, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो प्लानिंग और मैनेजमेंट मतलब क्या, एडवांस प्लानिंग क्या करोगे, मैनेजमेंट मतलब आप अगर इसको मैनेज करना चाहते हो तो उसमें आपको नजर रखना पड़ेगा, एमओक्यू क्या है, लीड टाइम क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, तो मैनेजमेंट आ जाता है. प्लानिंग
जो प्लान आपको डिस्पैच के हिसाब से करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. एंड मैनेजमेंट मतलब how do you really manage your inventory based on reorder, MOQ and all that we have been discussing. और इन्वेंट्री मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड करना जरूरी है, एंड फॉर दैट यू नीड द वीकली मीटिंग, डेली मीटिंग, sometimes weekly twice meeting, that is a PPC meeting, production planning meeting. What are the second parts? What do you manage? RM inventory you manage, subcontracting inventory you manage, consumables inventory you manage, WIP inventory and H inventory. Constant क्या है? मैं तो देखता हूं कि कॉन्स्टेंट में मेनली मैं दो चीज देखता हूं. एक है शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, दूसरा एक्सेस शुड नॉट हैव. सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेज के ऊपर नजर रखोगे, एक्सेस के ऊपर नजर नहीं रखोगे, शॉप फ्लोर पूरा जैम हो जाएगा आपका. एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली आई सी. चलने के लिए भी डिफिकल्टी होता है. पैलेट्स 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 एवरीवेयर पैलेट. क्या आप फैक्ट्री पैलेट का चलाते हो, क्या क्या प्रोडक्ट का चलाते हो? ये सवाल करना चाहिए आपको खुद को. कंट्रोल पॉइंट क्या है? RMITR, ROIG. ROIG जो मैंने पहले डिस्कस किया, RMITR, RM बेस्ड ITR. ठीक है. कंट्रोल पॉइंट क्यों बोल रहा हूं मैं? वो बताएगा आपका एफिशिएंसी ऑफ लीन प्रोसेस. ठीक है, नॉट वैल्यू बेस्ड ITR. फिर कंज्यूमेबल का ITR बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका ROIG, WIP ITR एंड ROIG, FG ITR और ROIG. आप अभी समझ रहे हो कि ROIG जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कैसे डिफाइन करोगे ROIG, और उस हिसाब से स्टॉक को कैलकुलेट करना पड़ेगा. मतलब जो आदमी एक्चुअली ROIG करता है, स्टॉक लेता है, मानिए कि 2 बार ले रहा है महीने में, उनको पूरा हिसाब रहना चाहिए, टैग अटैच रहना चाहिए हर एक पैलेट के साथ, हर एक ट्रे के साथ, कि ये कौन सी शिपमेंट के अगेंस्ट जा रहा है. अगर वो शिपमेंट रुक गया, इट इज स्लो, इट कुड बी डेड ऑल्सो, आई डोंट नो, इट कुड बी रेड ऑल्सो, नॉट डेड, रेड. फोकस पॉइंट्स फॉर प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्पैचमेंट. MOQ बैच साइज चाहिए, लीड टाइम चाहिए, थ्रूपुट टाइम चाहिए, रिजर्व स्टॉक चाहिए, या तो बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक, जो भी बोलो आप. कंजम्पशन रेट चाहिए, रीऑर्डर लिमिट चाहिए. ये सबके अगेंस्ट में आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को दाखिल कर सकते. मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सब नजर में रखते हुए प्रदीति प्रेस पार्ट में आज से 12 साल पहले मैं एक शुरू किया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बोर्ड. और मैं आपको एक फिल्म भी दिखाऊंगा 10 मिनट का, कि सेम कॉन्सेप्ट कैसे इन ए वेस्टर्न कंट्री उन लोग कैसे हेज मैन्युफैक्चरिंग कैसे इंप्लीमेंट किया है. तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो प्रदीति प्रेस पार्ट में हम लोग शुरू में किए थे, आई डोंट नो एंड डोंट थिंक दैट दे आर हैविंग दिस सिस्टम नाउ. लेकिन ये शुरू किए थे, 2 बोर्ड कहते, एक को उन लोग कहते थे पार्किंग बोर्ड, और एक्चुअली ये 2 बोर्ड में एक है प्रेस वर्सेस ऑपरेशन. एक साइड में है आपका प्रेसेस और ऑपरेशन, और एक साइड में है पार्ट वर्सेस ऑपरेशन. तो कौन सी पार्ट, मतलब ये मानिए कि सारे पार्ट्स है आपका, और ये पार्ट के अगेंस्ट में आपका एलोकेशन कैसा है, कितने बजे से कितने बजे. एक स्ट्रिप जो है, मेटल स्ट्रिप, ये डिनोट करता है कि ये पार्ट कितने बजे से कितने बजे, कितने बजे से कितने बजे, कितने बजे से कितने बजे ये चलेगा. मैंने ऑपरेशन क्या क्या है, वन आफ्टर द ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल, दिस इज शोइंग द कंपोनेंट serial number 2, say it requires 1 2 3 operations. And then if you see now all these things now distributed in these presses, and then you can understand that in this press from what time to what time what part will be running. So this is what actually I wanted to do it first physically and then convert it into a computerized system. So I will now show you the this a larger picture of the same thing.